So now in the IPL 2023, it's all about reaching the playoff stage. There are 10 teams in contention and it is a very, very tough fight to get in there. It's much harder than even last time. And one of the reasons is that GT, with a very good track record this time also, and it's the title holder, it is still struggling. It is still finding it tough to be there, although I'm quite sure it will reach the playoffs. But things have become pretty hot out there. So today, with my great friend CS, we will talk about the playoffs, what it means for each of the 10 teams. And if we run out of time in 30 minutes, then we'll probably do it as a second parter. But let's wait and try and see if we can squeeze everything in. So let me begin with a few stats. Now, 17 matches are remaining and certain teams have been able to consolidate a stable position. And they are pushing for the last four. Now, this is the most important part, which is that the league stage ends on May 21st. मई 21 को ये लीग स्टेज खत्म हो जाएगा और प्लेऑफ शुरू होगी चेन्नई में मई 23 को, और जो फाइनल वो अहमदाबाद में खेला जाएगा मई 28 को। सबसे पहली टीम से शुरुआत करते हैं जो टाइटल होल्डर्स हैं, गुजरात टाइटंस, और उनसे शुरुआत करते हैं। सो जीटी हैज प्लेड 11 मैचेस एंड दे हैव 16 पॉइंट्स। In their last IPL season, they had qualified with 16 points, but they have still got to do something better this time. And while it has lost 3 matches, all at home, Hardik Pandya's men have reached the 16-point mark in 11 matches. जैसे मैं कह रहा था कि IPL 2022 में इनके पास 16 पॉइंट्स थे, जिसमें 8 विन्स के बाद 16 पॉइंट थे, और वो काफ़ी था ताकि ये इनको टॉप लेवल पे पहुंचा दें। CS, इसमें देखा गया है कि जो कप्तान का रोल है, पहले कहा जाता था कि टेस्ट मैचेस में ज़्यादा अहमियत रखता है कप्तान का रोल, लेकिन जब से धोनी ने 2007 और 2011 में लिमिटेड ओवर्स में चमत्कार दिखाया तो एक कप्तान का रोल काफ़ी और इम्पोर्टेंट हो गया है। हार्दिक पांड्या जिस हिसाब से आए हैं, उन्होंने कप्तानी संभाली पिछली बार, और जिस हिसाब से अपनी टीम को लीड करते हैं, अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जीटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हॉटेस्ट टीम, और कप्तान की अगर बात करें, to begin with, when he was appointed captain, I was not very sure how he's going to lead, and in fact he has surprised everyone, including me. He's one of the best brains, I would say. Is very, I would say he has matured himself after that, being banned by BCCI or penalized by BCCI after that Coffee with Karan, that show. I think he has matured enough, and right now team को lead अच्छे से कर रहे हैं, and his bowling is especially, that is a boom for any team, including Team India, and he's one of the best all-rounders in the game. Ben Stokes probably the best, but he's almost there. He's almost touching him, or probably sometimes he even surpasses him when we talk about the all-rounders. But overall, his team balance is also good. The Shubman Gill, I think, is the best batsman right now. और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उन पर सबकी निगाहें हैं, लोग कह रहे हैं कि ये कोहली को रिप्लेस करेंगे, कोई कहते हैं कि ये सचिन की तरह बहुत अच्छा करेंगे, बट इनका एक अपना स्टाइल है, और ये स्टाइल को इमिटेट करना किसी और के लिए इतना आसान नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रगल के बाद आया, ये अंडर 19 की सक्सेस के बाद आया, ये फेलियर्स के बाद टीम इंडिया के साथ आया, लेकिन आज वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टार्स। और CS, क्विकली इस पॉइंट पे मैं ज़रूर आना चाहूँगा कि जब एक नया कप्तान एक साइड को संभालता है, और ये एक नई टीम भी थी पिछले सीजन में, तो क्या देखा जाता है कि किस हिसाब से उनकी वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस हिसाब से वो अपने टीम मेंबर्स का कॉन्फिडेंस जीतते हैं, और सबसे अहमियत तो ये बात होती है कि जब टीम बढ़िया ना कर रही हो तो एक कप्तान का रोल क्या होता है? देखिए, कप्तान एक मोटिवेटर हो सकता है, कप्तान को लीड फ्रंट से करना है, लेकिन कप्तान का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना। मुझे लगता है कप्तान के रहते हुए, अगर एक अच्छा कप्तान है तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस कहीं ज्यादा चला जाता है। बैट्समैन, आई कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड, बैट्समैन के लिए एक जगह फिक्स होती है। अगर आपके 2 ओपनर हैं तो 2 ओपनर ही खेलेंगे, अगर आपका कोई मिडल ऑर्डर में है तो नंबर 3 या 4 का फर्क पड़ सकता है, बट मोर लाइकली उनकी जगह कहीं ना कहीं सुरक्षित होती है, आप नंबर 3 या 4 में रोटेट कर पाएंगे। लेकिन कप्तान का सबसे बड़ा काम होता है फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर्स को उनकी फील्ड देना। मोस्टली क्रिकेट खेलते हुए जितने भी लोग हैं, जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार कप्तान इतना डोमिनेट करता है टीम को कि उसके सामने बॉलर्स की बोलने की हिम्मत नहीं होती। उनको लगता है कि अरे यार, अगर मैंने फील्ड ऑफ पे ली और कहीं रन लेग से चला गया तो मुझे अगला ओवर नहीं देंगे।
वो चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए फाइनली यू हैव ओनली 11 प्लेयर्स, रादर एक विकेट कीपर बॉलर को हटा दे तो आपके 9 प्लेयर्स आपको सेट करने हैं। उस 9 प्लेयर्स को आप हर जगह सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कप्तान का काम ये होता है कि बॉलर को अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं सर इस तरह की बॉल कर रहा हूँ, या मैं जब नेट्स में पे बॉल कर रहा हूँ तो मैं नेट्स में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता हुआ था, तो वो कोई बात नहीं, 1-2 चौके 1-2 छक्के वो खाने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनली आपको बॉलर से ही काम लेना है। और इस पूरे आईपीएल का जो फॉर्मेट है या टी20 का जो फॉर्मेट है, बॉलर को सबसे ज्यादा मार पड़ती है, बॉलर के पास कुछ नहीं है। तो ऐसे जी। में बॉलर को कॉन्फिडेंस देना और बॉलर के से उसका बेस्ट निकलवाना और फील्ड प्लेसमेंट करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रोल कप्तान का होता है। और हार्दिक पांड्या उसमें बीइंग ए बॉलर ऑल्सो, उन्होंने वो सब फेस किया है, तो शायद वो ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, जो बाकी Yeah, खैर you are धोनी उस absolutely right, चीज में CS. मास्टर। I'll give a quick example of Nasir Hussain, a favorite of mine. But I remember that when he was captain, he was a very tough cookie. He would push his players around. He would, really drive them to the ground. That was his style, and he wouldn't accept mistakes. And I still remember there were two reactions that I recall. One was Freddie Flintoff saying that Nas was too hard on the players, and the second one is Dominic Cork, who was then the opening bowler for England, who said that I have never had a better captain than Nas. So it just shows how players react to different captains, and they have their own opinions. And like CS was saying, some are mild captains, some are not, some are in your face. So it takes all sorts to make a world. Let's go on to CSK, where CS's favorite man, Mahi Bhai, is the captain, and he has done so much that there's nothing left to say. I'll just reel out some stats. तो CSK ने अब तक 11 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 13 पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये आ रही है कि एक मैच जो उनकी जेब में था अगेंस्ट लखनऊ सुपर जॉयंट्स, बिकॉज ऑफ रेन दे शेयर्ड 1 point each, and but they're still poised to make the playoffs with 3 games in hand. And now CSK will need to win at least 2 out of its 3 games to officially seal a top 2 playoff spot. And CSK have 2 home games before that final game away against DC. So CS, if you look at the fact that out of 3 they need to win 2, so DC won't be much of a challenge for them, it seems. And where they are talking about their home games, वो इनका गढ़ है और बिल्कुल वो सारे फैक्टर्स वो क्लोज करने में माहिर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सीएसके के साथ बेस्ट ये है कि उनकी टीम ऑब्वियसली धोनी लीड कर रहे हैं, उन्हें मालूम है हर एक व्यक्ति का डीएनए, उन्हें मालूम है किस तरह से बॉल कर सकते हैं, किस तरह से बैट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट को देखें, ऋतुराज इज वन ऑफ द रेवल्यूशंस, और दूसरा एक पथिराना जो इनका वो जो स्लिंग बॉलर है, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने, अगर आप देखें कि लास्ट के ओवर्स स्लिंग मलिंगा की तरह का उनका एक्शन है स्लिंग, और इनफैक्ट जब आप उसको क्लोजली देखें, मैं उस दिन स्लाइड्स कहीं दिखा रहे थे, हिज एक्शन इज इवन लोअर देन हिज रिलीज पॉइंट इज इवन लोअर देन मलिंगा। तो उस हिसाब से लास्ट के ओवर्स में खासकर उनको खेलना, अगर उनके डेवन कॉनवे जो न्यूजीलैंड के ओपनर है, वो खेलना उनको पसंद नहीं करते नेट में। मैं उनका पढ़ रहा था कि मुझे अजीब सा लगता है इनको, मेरा कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं। और ये लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। जब ये शुरुआत में पहला मैच खेल रहे, पहला नहीं, बहुत शुरू में इनको देख रहे थे प्रैक्टिस में, तो इनफैक्ट लग रहा था कि शायद इनको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इनको खिला भी रहे हैं। और लास्ट के ओवर्स में ये कमाल, उनके वही डिपिंग यॉर्कर्स और जिस तरह से स्लोअर बॉल्स जो काम कर रही है, ये भी एक मुझे लगता है कि एमएसडी के लिए एक बूम है कि ऐसे वक्त में, और जब इनको जीतना भी, और जब नेचुरली इनका लास्ट सीजन है, मोस्ट लाइकली धोनी इसके बाद नहीं खेलेंगे एज ए प्लेयर। तो ऐसे में ये जरूर चाहेंगे कि एक जीत करके जाए, और मुंबई चाहे टाइटंस हो, अपना गुजरात टाइटंस हो या कोई और भी टीम हो, उसके लिए एक डिफिकल्ट टाइम में ये लोग देना चाहेंगे इस बार। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जो मलिंगा की तरह वो जो बॉलिंग करते हैं, तो इनके पास 2 श्रीलंकन बॉलर्स हैं, तीक्षणा और पथिराना। लेकिन मुझे एक बॉलर कभी नहीं समझ में आया, वो है तुषार देशपांडे। वो बीच-बीच में इतना पिटवा देते हैं कि धोनी के चेहरा भी बिल्कुल मायूस हो जाता है। तो अब पता नहीं उनके पास या इम्पैक्ट सब्स नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है, सो ही हैज टू स्टे विद इट। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है पथिराना। अगर आपको याद हो, जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो जो भी इस तरह की बॉल करते थे उसको बोलते थे पत्थर मारना। तो इनफैक्ट जो पथिराना मर गई, वो एक तरह का उनका स्लिंग एक्शन ही इस तरह का है, जो पत्थर आप मारने के लिए, अगर आप देखें पहाड़ी से जब हम मारते थे पत्थर को, अगर दूर फेंकना है तो ये स्लिंग एक्शन के साथ ही जाता था। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन खैर आई एम नॉट ए वेरी
मतलब कि कोई बहुत ग्रेट मुझे वो नहीं लगता ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट खराब करने में ये ज़्यादा योगदान है। बट एनीवे ही इज़ ए एक्साइटिंग प्लेयर, लोग देखकर पसंद करते हैं, तो ठीक है, दौर है, इस दौर में पसंद कीजिए। बिल्कुल। तो अब आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पे। मैं इस वक्त हूँ लखनऊ में, अपने माँ बाप से मिलने आया हूँ। तो लखनऊ सुपर जायंट्स दिल के करीब है, लेकिन एक आध बार अपने प्रेडिक्शंस में मैंने कहा था मैं जाना तो चाहता हूँ एलएसजी के साथ, लेकिन किसी और के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट एलएसजी। सो देयर इज so you have 11 matches out of which they have won 11 points. And while it made the playoffs smoothly last time, the LSG have had a bumpy ride this year. Excuse me. LSG is now placed third with 11 points and 3 games to go. LSG can confirm qualification with 3 wins. यानी अब 3 मैचेस बचे हैं, तो और 3 मैचेस जीतने ही जीतने हैं। उसमें से एक गेम लखनऊ में है और 2 बाहर है. And it could miss out on the last 4 if it loses at least one match, finishing with a maximum of 15 points. So the pressure is really hard on LSG. And do remember that KL Rahul is their captain is out of the equation with an injury. You have Krunal Pandya taking charge. You have also had Karun Nair coming in. But all these permutations and combinations do not seem to have worked for them so far. CS, your view on LSG? आई थिंक कप्तान के बाहर होने से बहुत बड़ा झटका है, और उनको रिप्लेस करना, और वो अच्छा खेल रहे थे, खैर जिता नहीं पा रहे थे, ये करेक्ट चीज़ है, लेकिन उनकी अपनी फॉर्म भी क्रिटिसाइज हो रहे थे कि प्रोबेबली उनकी जो स्ट्राइक रेट है उतना अच्छा नहीं, लेकिन ओवरऑल देखें तो वो अपनी फॉर्म को लगातार वो कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे थे और टीम को अच्छे से लीड भी कर रहे थे। टीम में सिर्फ एक कप्तान नहीं जिता सकता, तो उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गया हुआ था, लेकिन उनका बाहर होना, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होना एक सेटबैक है टीम के लिए। बट ओवरऑल आई वुड से कि एक अच्छी बैलेंस साइड है ये, और इतना खराब नहीं है कि ये ऊपर ना जा सके। और अभी इनको जिस तरह आपने बताया, 2 विंस तो 100% इनको लेनी पड़ेगी अगर अगर जाना है, और देन डिपेंड्स ऑन रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। और दूसरा, जो जो फॉर्म ऑफ अदर प्लेयर्स क्विंटन डी कॉक या बाकी के प्लेयर्स की जो फॉर्म है, कृणाल पांड्या को लीड करवाया जा रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट। मुझे खैर कभी कैप्टन मटेरियल नहीं लगे, इनके भाई भी नहीं लगते थे, लेकिन उन्होंने सरप्राइज किया, हमें झूठा ठहराया, तो हो सकता है ये भी ऐसा करे आने वाले दिनों में, लेकिन उस तरह का नहीं थे। और जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने इनको कप्तान बनाया है एज ए ऑलराउंडर, एक अच्छा इनको दिखाने का या अपने आप को शो करने का शायद ज्यादा मौका इनको दिया गया है। क्या अपने ब्रदर की तरह कर पाएंगे, क्या अपने भाई को इमिटेट कर पाएंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा या चैलेंज होगा इनके सामने। जी बिल्कुल। और ये पिछले जो भाई वर्सेस भाई हुआ था, तो कृणाल की टीम हार गई थी, और ये पॉइंट जरूर नोट किया जाए। हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ, और राजस्थान रॉयल्स का इस बार 11 मैच में से केवल 10 पॉइंट है, और दे हैव रिकॉर्डेड देयर 5th डिफीट इन 6 मैचेस अगेंस्ट द एसआरएच इन जयपुर, एंड दे हैव मैनेज्ड टू cling on to the 4th spot thanks to the brilliant start of their campaign, but it hasn't really gone too well. Now with 10 points and 3 games remaining, 3 गेम्स बचे हैं, और संजू सैमसन का जो टीम है, they will be forced to try and win as many to get into the playoffs. So Rajasthan faces Kolkata next before hosting RCB, which is another tough team, before closing its league stage away against the Punjab Kings. Now with 3 wins, the Royals would have ensured that at least 3 teams are out of the race, and the last 2 spots could effectively boil down to a case of net run rate. But please remember that the next 3 teams that they are facing is Kolkata Knight Riders. They might be able to beat them because KKR has only 8 points, but RCB and Punjab Kings are going to be a very tough play. CS. अगर आप मुझसे पूछे, मुझे सबसे अच्छी टीम ये लगती है। अच्छा करें बुरा करें, लेकिन जिस तरह से इनके कप्तान है, जिस तरह से मैं कहूँगा कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट है पूरा टीम इंडिया का या हमारे सिलेक्टर्स का, मुझे बहुत एक्साइटिंग कप्तान लगते हैं। वो दिल से खेलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनकी फील्ड में प्रेजेंस हमेशा आपको दिखेगी, एज ए विकेट कीपर भी, एज ए मुझे लगता है कप्तान भी, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टीम में। तो ऐसे में क्या टीम ऊपर जा पाएगी या नहीं, मुझे लगता है कि चांसेस है। जिस तरह का आज का मैच एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, मुंबई और रॉयल चैलेंजर्स का, वहां के मैच से भी शायद टेम्पो सेट होगा। अगर आज मुंबई हारती है तो मुझे लगता है मुंबई के लिए रास्ता बंद हो जाएगा।
तो उस हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के लिए एक एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है कि एक जो हर्डल है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मैंने जिस तरह का मेरी फेवरेट टीम है, और अगर अगर जोफ्रा आर्चर जा रहे हैं तो जॉर्डन आ भी रहे हैं, तो ये पूरी टीम इस तरह से बुनी गई है, या पूरा एक सीजन इस तरह से सेट किया गया था कि आपको किसी की कमी ना खले। तो उस हिसाब से मैं इनके साथ रहूंगा, और शायद इस बार पहले सीजन की तरह हो सकता है ये अपसाइड डाउन दूसरे लोगों को दिखा सकेंगे। जी बिल्कुल। नेक्स्ट टीम है आरसीबी, जिसके पास 10 मैचेस में से 10 पॉइंट्स इस वक्त हैं, और आरसीबी की खासियत यही रही है कि इनके जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं, जिसमें विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, ये जब भी तीनों चले हैं ज्यादातर ये लोग जीते हैं। लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है। महिपाल लमरोर ने 54 रन मारे थे डीसी के खिलाफ, लेकिन वो मैच ये लोग हार गए। केदार जाधव को बुलाया गया है, अनुज रावत हैं, लेकिन अब इनको वो टेम्पो पिक करना पड़ेगा, और दिनेश कार्तिक बल्ले के साथ नहीं चल पाए। बॉलिंग इनकी अच्छी है, जॉश हेजलवुड प्लस सिराज एंड हसरंगा। On the points table, what I have before me is that cannot afford more than one defeat in its remaining matches, and they have 3 matches remaining out. In fact, in the first 3 of their remaining 4 matches, so they have to win at least 3. So CS, how do you see that happening? देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग जो अगर आप कहें, अगर ऑन पेपर्स, वो विराट कोहली या फैफ डुप्लेसिस के होते हुए, या केदार को क्यों बुला रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। देखिए, केदार यादव कब खेले थे, और केदार यादव एक कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास बहुत कुछ टीम को वापस देने के लिए, उनका वक्त शायद जा चुका है। और वैसे भी जब तक वो खेले भी थे, ही वॉज ऑलवेज ए रन एंड बॉल काइंड ऑफ प्लेयर, नॉट इस टीम में इनको सेट करना दिनेश कार्तिक के आगे है, क्योंकि अगर ये आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर सेट करना इनको इतना आसान होगा। बट ओवरऑल एक्साइटिंग टीम, और फैफ डु प्लेसी का भी जिस तरह से वो खेल रहे हैं, या अगर अगर रिजल्ट अच्छे ना आए तो ये लास्ट सीजन हो सकता है। एज ए कप्तान तो 100%, मेरे ख्याल से कोई नया कप्तान को ये जरूर देखना चाहेंगे अगली बार। बट एज ए प्लेयर भी बहुत कुछ रेपुटेशन इनकी स्टेक पर है, अगर ये नहीं जीतते हैं तो मुश्किल होगा। और जहां तक बॉलिंग का इनकी बात करें तो सिराज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, जो अगर डेथ ओवर्स की बात करें, नई बॉल से बात करें, उन्होंने अपने आप को खुल करके दिखाया कि वो क्यों इतने एक्साइटिंग, या क्यों टीम इंडिया के लिए शॉर्टर फॉर्मेट वाइट बॉल के साथ नकल बॉल को भी यूज करना उनको आ गया। मोहम्मद शमी के साथ शायद बॉल करते करते उनको वो आदत सी पड़नी शुरू हो गई है। और इनफैक्ट मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे ईशांत शर्मा को इस बार नकल बॉल करते हुए देखते हुआ हुआ। तो वो भी अपने बुढ़ापे में, जैसे कहते हैं, जाते हुए टीम में वो भी सीख गए। तो एक अच्छी टीम है, और पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि ये जो टीम है ये अभी अपने पोटेंशियल को नहीं जस्टिफाई कर पाई है। इस टीम के पास बहुत कुछ है दिखाने को, शायद अभी यहाँ से इनका एक और टेक ऑफ हो। जी, next team that I have is Mumbai Indians. 10 matches, 10 points, and they are struggling. Rohit Sharma is horribly out of form. In one of the recent matches, they sent him at number 3. Again, he got out for nothing. And Jofra Archer is out of the contention. Now, the main thing also is that they don't seem to have the balance going, and they have a lot of trouble even in the middle orders. Now, with a win over CSK, they could have boosted their chances. They are 5-time champions, and they now find themselves in the thick of the competition, sharing the 10-point stack with 3 teams. Now, with 4 wins from here, MI can even target a top 2 finish. But the main point is, will it happen, or will it come down to the net run rate, CS? आई थिंक आज का मैच, जैसे मैंने पहले भी कहा, आज राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई में से मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स के बाद शायद ज्यादा बेटर चांसेस है रादर देन मुंबई। लेकिन मुंबई को ज्यादा मैचेस अपने होम मैचेस खेलने, तो उनको वो एक एडवांटेज है। लेकिन मुझे लगता है आज का मैच मेक और ब्रेक होगा, क्योंकि इस टीम ने बहुत से चांसेस भी लिए हैं। ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर के बेटे को भी आपने चांस दिया है, वो मुझे नहीं लगता था रणजी ट्रॉफी के लायक भी है, लेकिन वो आपने चांस दिया, इतना बड़ा एक रिस्क लिया, और इतना बड़ा अच्छा और बुरा तो नहीं, वो तो एक नॉर्मल प्लेयर जिस कोई भी स्टार के बच्चे की तरह, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन एक स्टार पावर की तरह से खिलाया गया। रोहित शर्मा की खुद की फॉर्म, पहली बार किसी बड़े प्लेयर्स ने भी, गावस्कर जैसे प्लेयरों ने भी इतना बोलने की हिम्मत रखी है कि शायद ये अब हिट नहीं कर पा रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू हिट द बॉल प्रॉपरली, और इनको हमेशा हिटमैन की तरह इनको संज्ञा दी गई थी। तो ऐसे में
ना केवल टीम इंडिया की कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जा रहे हैं, वहां भी आपके टॉप के 3 प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, वहां भी आपको रिलेटिवली खैर अजिंक्य वापिस आए हैं, लेकिन कप्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस होंगे, जब शायद इस आईपीएल के बाद आपके पास एक नया चीफ सेलेक्टर भी होगा। अगर उस चीफ सेलेक्टर में अपना दम होगा और अहमदाबाद से इंस्ट्रक्शंस नहीं आएगी, तो कप्तान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आज ये हारते हैं या इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं करते तो। Right, so we have 9 minutes left on the show. So yes, we'll have to slightly increase our pace. Next one is Punjab Kings, 11 matches, 10 points. They've had problems at the top with Shikhar Dhawan coming in and out, and in between they of course had Karan taking charge and the kind of money riding on him, 18.5 crores. So there was a lot of chatter around it, but now Punjab can only target a 16-point finish, where the net run rate is poised to make a big impact this time. And with 3 wins, PBS can once again find themselves locked with at least 3 teams at 16 points, where the NRR could be the main factors. Yes. देखिए, टीम खराब नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है शुरू में जैसे इम्पैक्ट प्लेयर में इन्होंने एक जगह ऋषि धवन को यूज किया, वो इनका काम नहीं कर पाया। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी शायद कहीं ना कहीं मिसफायर किए, और कप्तान का ना होना, शिखर धवन का लगातार ना खेल पाना, वो भी एक मुश्किल का है। वो अच्छी फॉर्म में थे इस पूरे सीजन में अगर आप देखें। और सैम करन की जहां तक बात की, देखिए 18 करोड़ वाला तो कभी मुझे नहीं लगता था कि इस तरह के प्लेयर भी हैं, बट ऐसा ही हुआ। हमने पठान बंधु पे बहुत पैसा उड़ाया, हमने एक बार जब बहुत खराब कर रहे थे ये युवराज सिंह, उनको भी 16 करोड़ दिया। तो इसी तरह से सैम करन भी है, बट ही इज ए मैन इन फॉर्म। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ही इज नॉट ए इम्पैक्ट प्लेयर जो बेन स्टोक्स की तरह पूरा मैच बदल सके। ही इज ए गुड प्लेयर क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर जगह पे टिडबिट्स अपना लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ही इज ए इम्पैक्ट प्लेयर और पूरा गेम को बदल के रखते हैं। अर्शदीप का मैं जरूर कहना चाहूंगा, अर्शदीप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है स्लाइड पर है। अर्शदीप को रीड कर लिया गया है, लगातार इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आपके स्लाइड्स बनने, आपके वीडियोस बनना शुरू करते हैं, आपको थोड़ा सा उन्होंने रीड भी कर लिया। बॉल को ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ रिलीज अच्छा कर दिया, लेकिन शायद उनको अपनी बॉलिंग पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। Okay, KKR is next with 11 matches and 10 points. My point here quickly is that both Sunil Narine and Andre Russell haven't really fired at all. In fact, once when Andre Russell broke down while bowling, Sunil Gavaskar said in a very acidic way that every time this man has to be assisted off the field in all the seasons. That apart, he looks very stiff. He's not been able to hit those big runs. And Sunil Narine is not the bowler that he used to be. So the point is, on the table, KKR still needs 3 wins in his remaining 3 games to stay in contention for the playoffs. Now that seems very tough, CS. देखिए, इनके अगर 2 मैचेस देखें तो रिंकू सिंह ने जिताया लास्ट बॉल्स पे। तो ये मत भूलिए कि रिंकू सिंह ने जो फर्स्ट मैच जिताया था वो तो इम्पॉसिबल था। वैसा मैच तो शायद वो लाइफ में भी दोबारा नहीं खेलेंगे। लास्ट हर बॉल पर 5 छक्के मारना और जिस तरह से मैच को जिताया था। दूसरा, आपको गलतियां भी माननी पड़ेगी कि जिस तरह से आपने बाकी के प्लेयर्स को, नीतीश राणा को जिस तरह कप्तानी सौंपी इन्होंने। नीतीश राणा कभी दिल्ली में भी बहुत रेगुलर कप्तान नहीं, एक आधा यदा कदा कभी बने थे। उन पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनकी अपनी फॉर्म भी अफेक्ट हुई है। और दूसरा, कभी वो इतने बड़े प्लेयर भी नहीं रहे कि उनको सीधा ला करके नंबर 3 पर खिलाना शुरू कर दिया जाए। तो ओवरऑल पूरा एक टीम मैनेजमेंट की तरफ से मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं लिए गए, लेकिन अभी भी अगर 3 मैचेस जीतते हैं, टीम उतनी खराब नहीं है, खासकर रसेल जैसे लोगों के होते हुए, रिंकू सिंह की फॉर्म देखते हुए ये किसी भी दिन अपसेट करने में तो माहिर है। शायद टूर्नामेंट जीतने के लिए वो कंसिस्टेंसी शायद इनमें नजर अभी तक नहीं आई है। Okay, the next one is SRH, 10 matches, Sunrisers Hyderabad, 10 matches and 8 points. Now, SRH is in a position that, like KKR, is 1 loss away from losing out in the playoff race. So nothing much has gone in its favor. And the 2016 winner can effectively be the party pooper for LSG, MI and RCB, while setting itself for a 16-point finish, beyond which the NRR calculations may decide the 3rd and 4th spots on the standings. So CS, this again with only 8 points and praying for NRR, it sounds pretty tough. देखिए, मकरम को जब साउथ अफ्रीकन प्लेयर को जब कप्तान बनाया था, कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ रहा था कि आपने जो प्लेयर्स की सिलेक्शन में जो आपने प्लेयर्स खरीदे, उसमें आपसे बहुत अच्छी कैलकुलेशन आपकी नहीं हो पाई।
लेकिन फिर से उनके जिस तरह से अगर आप बॉलर की बात करें, जेनसन की बात करें, बहुत ही अच्छी फॉर्म में आए थे। यहाँ आकर के क्या वो एक अलग बात है। लेकिन टीम को बहुत अच्छे से, ना तो प्लेयर कोई बहुत बड़े स्टार प्लेयर्स थे, ना इंडियंस जो प्लेयर्स थे ऐसा कोई नीचे से निकल के आ पाया, जैसे रिंकू सिंह ने इस बार धमाल किया, या वहां पर शुभमन गिल बहुत कमाल का कर रहे हैं। उस तरह से भी कोई नजर नहीं आ रहा। बहुत टफ चांसेस कि यहाँ से निकल करके ऊपर जा पाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर, मुझे लगता है कि उनके पास बहुत कुछ चांसेस थे, अगर उनको अच्छे से यूज किया जाता, वो भी उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफिकल्ट टाइम, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं है इनके लिए। And the last team that I have on my list is DC, Delhi Capitals. They have only 8 points out of 10 matches. They have been a mess so far. They tried Prithvi Shaw in the beginning, just for 6-7 matches they played him. He never worked for them. Then David Warner came under criticism. Poor guy was trying his level best. The middle order has not been able to fire. So it's been quite messy. Now, with 8 points from 10 matches and a negative NRR, they have very few realistic targets left. That is point one. And DC only plays 2 more rivals in his last 4 rounds, and those are 2 challenging matches against CSK and PBKS. Over to you, CS. आई थिंक टीम में सबसे पहले जो कहते हैं ना, जो जब शुरुआत होती है, शुरुआत से पहले ही कप्तान का इंजर्ड होना, ऋषभ पंत का ना होना टीम ड्रेसिंग रूम में शायद एक सेटबैक था। और दूसरा एक सबसे बड़ी जो बात है कि जिस तरह सरफराज की बात करें, सरफराज से बहुत सी उम्मीद थी, लेकिन सरफराज जो है वो रणजी मोल्ड के ज्यादा प्लेयर है, और मुझे नहीं लगता कि T20 मोल्ड के ज्यादा प्लेयर है। वो थोड़े डेज टीम के ज्यादा अच्छे हैं। पृथ्वी शॉ का ना चलना जो आपने कहा, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। पृथ्वी शॉ एक सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं आपको, वो एक बहुत बड़े प्लेयर है। खैर जस्टिफाइड, जिस तरह संजू सैमसंग राजस्थान रॉयल्स के, उनको सेटबैक्स बहुत से दिए हमारे सेलेक्टर्स ने, पृथ्वी शॉ के साथ भी वो प्रॉब्लम रही। इनके साथ डिसिप्लिनरी इशू भी रहा है, तो उस वजह से भी इनका टीम से ज्यादा लंबे टाइम तक बाहर रहे हैं। बट ओवरऑल आई थिंक डेविड वार्नर उस फॉर्म में नहीं दिखते। डेविड वार्नर भी अपने लास्ट फेज से गुजर रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद शायद इनके पर भी एक कॉल ली जाएगी अब इनके सिलेक्टर्स द्वारा। ओवरऑल टीम का मुझे कहीं पर क्वालिफाई करती हुई नहीं दिखती, लेकिन इस बार जो मुझे लगता था, जो इनके पुराने अच्छे प्लेयर थे, जिस तरह से मनीष पांडे की हम बात करते हैं, उनको कभी चांस नहीं दिया गया, उनको अच्छे से कभी यूज नहीं किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस आपकी शायद गड़बड़ा गई है इस बार। Right, so it's time for us to go. और ये and, मत भूलिए कि इसमें 2 स्ट्रेटेजीज बहुत बड़े हैं, आपके दादा भी, सौरव गांगुली भी, और रिकी पॉन्टिंग भी। तो दोनों क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो वो मेरे दादा हो गए और रिकी पॉन्टिंग आपके हो गए। Okay, thanks so much, CS. It's time to wrap this show up, and we'll be back with lots more on this IPL series. And like CS said in a lighter way, that what is the role of the mentor when you have one of India's possibly greatest captains like Saurav Ganguly sitting there and being criticized by our former coach Ravi Shastri, that what is he doing? What is Ricky Ponting doing as they keep sliding? So we'll talk about mentorship. We'll talk about the coaching team possibly in 1 or 2 further episodes. For now, it's goodbye and good luck to all the teams, and we'll keep a very close eye on the playoffs. Thanks for watching.